दुनिया जिनके साथ आप इजीली खेल कर पाएंगे कोई भी टॉपिक। मेरा नाम है कृष्णा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द GSCB पेपर ऑफ 2020 पार्ट 2. So guys, have you seen the part 1? And if not, that go in the description box, click on the link and you'll be on part 1. Or you can also click on this I button. All right, so let's start today's questions. First question is a 3 cross 4 matrix. Elements are given by Aij equals to mode of minus 3i plus 4j. Then what is the summation I equals to 1 to 3 aii whole raised to I? So what do you mean by I? हम आई के कब बोल सकते हैं? जब भी हमारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम रो सेम कॉलम में होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स तो दे दिया है, मींस 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। हियर आई गिवन द मैट्रिक्स A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24 and so on. ठीक है, now what is given to us? Aij equals to minus 3i plus 4j का मोड, मीन्स इसको यूज करके हमारे एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ i and j and we'll get the elements of our matrix. Now we got our matrix. अब वो एलिमेंट्स को चूज करना है जो ए आई आई है, मीन्स सेम कॉलम सेम रोज। सो 1 2 3, यस, सो दिस आर, अगर इस 1 को देखने जाए तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो में है, 2 को देखने जाए तो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में है, और 3 को देखने जाए तो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो में है। ठीक है, नाउ what is given, what we have to find is aii whole raised to I, summation 1 to 3. Alright, तो हम पुट करेंगे हमारी वैल्यूज को and then doing this we'll get 32, that is 2 raised to 5. Yes, and we got the answer. It was easier, सिर्फ हमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना था, right? Now the 12th question is A is a 3 cross 3 matrix, square matrix है. Determinant of A is equals to 7. If B is equals to adjoint of A, then determinant of AB equals to dash. Pause the video and do it yourself and then see the solution, right? तो शुरू करते हैं हमारा solution इसका. Now we are given A is a matrix 3 cross 3. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए लिख सकते हैं, राइट? दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। नाउ कैन वी राइट एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n minus 1? Yes, we can, because this is a formula, right? So determinant of A raised to n minus 1, where n is the order of our matrix. ठीक है, so determinant of AB सब कुछ put किया हमने and we got that determinant A raised to n is equals to 7 raised to 3, because 7 is already given to us, right? तो बहुत easy question था, सिर्फ हमें क्या याद रखना था? Determinant of adjoint A is equals to determinant of A raised to n minus 1, where n is the order. ठीक है? All right. Now the 13th question says A is this matrix, 2 cross 2 matrix, and A square minus 5A is equals to Ki. Then K equals to what? This I is what? Identity matrix, right? Now let's see which is the correct option. First of all, हमें equation दे दिया है, so we have to find A square. Now what is A square? A into A. ठीक है, तो matrix
a इंटू a को हमने मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया 8 5 माइनस 5 3। ठीक है, नाउ वील पुट दिस a स्क्वायर इन द गिवन इक्वेशन। a स्क्वायर की जगह पर हमने ये मैट्रिक्स रख दिया। 5a, ठीक है, 5a की जगह पर हमने 15 5 माइनस 5 10 रख दिया। नाउ वी ऑल नो कि व्हेनेवर अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद एनी मैट्रिक्स, अगर उस कांस्टेंट को हम मैट्रिक्स के अंदर लेकर जाएं तो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, right? So if you can see this a, so 3 into 5 it is 15, 1 into 5 5, then minus 1 into 5 minus 5, and 2 into 10, 2 into 5 is 10, right? Now we all know equality of matrix। ठीक है, जब दोनों साइड पे दोनों के ऑर्डर सेम हो देन वी कैन कंपेयर बोथ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इफ यू वांट टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट मैट्रिक्स देन यू कैन गो ऑन द मैट्रिक्स वीडियो एंड यू विल फाइंड मेनी फॉर्मूलाज देयर। ठीक है, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो नाउ after comparing both the sides LHS and RHS we got k equals to minus 7, right? All right, now next is question 14th. 14th question says matrices x and y are inverse of each other। x का inverse y है और y का inverse x है। ठीक है, so which option is correct? इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, so let's check one question, one options, every option। so सबसे पहले हमने नोट डाउन कर लिया कि x का इनवर्स y है और y का इनवर्स x है। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑप्शन वाज xy इक्वल्स टू i एंड yx इक्वल्स टू माइनस i। i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ x इनटू y, क्या मैं x की जगह y इनवर्स रख सकती हूँ? रख सकती हूँ, विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बट x इनवर्स x is not equal to minus i। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन को चेक किया तो xy इक्वल्स टू yx इक्वल्स टू माइनस i, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, xy इक्वल्स टू yx इक्वल्स टू 0, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमारा आंसर आएगा ही, राइट? नाउ इफ वी चेक द डी ऑप्शन, दैट इज x इनवर्स into y inverse is equals to y inverse into x inverse equals to i। ठीक है, दैट इज करेक्ट। अगर हम इधर हम लोग x इनवर्स की जगह y पुट कर दें एंड इधर y इनवर्स की जगह x पुट कर दे, देन विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट? सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल राइट, सो 15th क्वेश्चन, if determinant equals to this x plus y plus z square, x square plus y plus z, x plus y square plus z, पूरा हमें डिटर्मिनेंट दिया है वेयर x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, मींस तीनों यूनिक नंबर्स हैं, राइट? बिलोंग्स टू r माइनस 0, देन आवर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डैश। क्या होगा? इजी क्वेश्चन, राइट? अगर मैं इस रो को x z स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर, इन तीनों एलिमेंट्स को अगर मैं मेरे थर्ड रो में ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या मेरी फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम हो जाएगी? या यस, ऑफ कोर्स हो जाएगी सेम। ठीक है, तो ये तो हमारी एक प्रॉपर्टी भी है डिटर्मिनेंट्स की कि व्हेनेवर टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन आवर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। ये तो भाई इजी क्वेश्चन था, हम सबने इसको किल कर दिया है बस। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल लाइक दिस दिस क्वेश्चन, राइट? काफी इजी सा था। 16th question, for determinant this sum of minor and cofactor of 2020 is dash, means ये जो हमारा एलिमेंट है 2020, इसका माइनर इस हमें फाइंड करना है एंड कोफैक्टर फाइंड करना है। दोनों का सम करने के बाद क्या आंसर आता है, लेट्स चेक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
हमने डिटर्मिनेंट हमारा लिख लिया। नाउ 2020 का माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना है हमें। नाउ माइनर कैसे फाइंड करेंगे हम? लाइक दिस, एज यू कैन सी, then multiplying 2022 and 2027 minus 2025 2024। ठीक है, ये हमारा माइनर आ गया। अब हमें फाइंड करना है हमारा कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में क्या होगा? -1/1 + 2। नाउ व्हाट इज दिस 1 + 2? I + j। मीन्स हमारा जो 2020 है वो फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, राइट? तो -1/i + j, that is 1 + 2 into determinant of this 2022, 2027, 2025 and 2024. Now this is minus of minor। ठीक है, तो ये तो कुछ था ही नहीं, इट वॉज वेरी सिंपल। माइनर प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज दिस कोफैक्टर इज माइनस ऑफ माइनर। ठीक है, सो इट वॉज वेरी इजी। होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग एंड लाइक दिस क्वेश्चन। 17th question says, if area of triangle is 35 square units with vertices 2, -6, 5, 4 and k, 4, then k equals to dash. Which is the correct answer? Guys, do pause this video and do it yourself and then see the solution, because practice करना हमें जरूरी है, मैथ्स में तो बहुत जरूरी है। जब तक कोई एक टॉपिक से क्वेश्चंस की 3-4 क्वेश्चंस ना कर लो, तब तक आपको वो इजी नहीं लगेगा। ठीक है, व्हेनेवर वी हैव एनी क्वेश्चंस, तो यू कैन गो 3 to 4 एग्जांपल्स आप करो एंड यू विल फाइंड वेरी इजी द फोर्थ वन, द फिफ्थ वन, बिकॉज यू हैव द थिंग, राइट? तो सबसे पहले हमें एरिया ऑलरेडी दे दिया है 35 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसेस दे दिए हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया? एरिया इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ d अपॉन 2 मोड ऑफ d अपॉन 2। ठीक है, मोड ऑफ d अपॉन 2। ठीक है, तो मोड ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 70। नाउ 70 इक्वल्स टू ये आ गया हमारे पास। नाउ अभी मोड है तो हमारी वैल्यू 70 भी हो सकती है, -70 भी हो सकती है, तो k की भी दो वैल्यूज तो हो ही सकती है, right? So if after solving this both equations, we'll find that our k equals to 12, -2 and D is the correct answer for this question। बहुत सिंपल था, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि k की दो वैल्यूज आ सकती हैं, बिकॉज वहां मोड है हमारे फॉर्मूला में। सो +70 और -70 लेना मत भूलना एंड यू विल फाइंड द आंसर। 18th question, let the function f be defined by f of x cx plus 1 if x is less than equals to 3 and dx plus 3 if x is greater than 3। ठीक है, now f is continuous at x equals to 3। x equals to 3 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, then d minus c is equals to what? ऑप्शंस हमें दे दिए हैं। ये जो c ऑप्शन है वो है -2/3। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी हमें ये चीज दे दी है। अब कंटिन्यूअस की चीज क्या होता है, क्या होती है कंडीशंस? के लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस। तीनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तीनों पर लिमिट्स इक्वल होती है। सो विल पुट x टेंड्स टू 3 माइनस पर cx प्लस 1 होगा। ठीक है, नाउ लिमिट x टेंड्स टू 3, व्हेन limit is x tends to 3 तो cx plus 1 and when limit is x tends to 3 plus our function will be dx plus 3। ठीक है, now solving this all we'll get 3c plus 1 equals to 3d plus 3, 3d minus 3c equals to -2 and yes we got our answer, d minus c equals to -2/3। yes and see our correct answer। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे, राइट? ऑलराइट, तो 19th क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, y equals to x plus 3 whole square
x plus 4 the whole cube and x plus 5 the whole raised to 4. Then the first order derivative of y with respect to x is dash. देखने में काफी डेंजरस दिख रहा है राइट, लेकिन हम सॉल्व करने जाएंगे सो इट विल बी वेरी 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 इजी. ठीक है, सो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले दे दिया है हमें y इक्वल्स टू दिस फंक्शन. नाउ अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स, बिकॉज जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लॉग की हेल्प लेंगे, बिकॉज लॉग हमारे इक्वेशन को डैम इजी करके रख देगा. ठीक है, so log y equals to 2 log x plus 3 log x plus 4 log x plus 5. ठीक है, ये फॉर्मूलाज तो हमें पता है log की. Now derivating with respect to x, so 1 by y dy by dx equals to 2 by x plus 3 by x plus 4 by x plus 5. Taking y on right hand side. Now y dash is equals to y summation I equals to 2 to 4 I by x plus 1 plus I. अब ये था हमारा एक ऑप्शन. हम लोगों ने इसको एक बार चेक किया कि क्या हमारा जो आंसर आ रहा है और यहाँ जो ऑप्शन दिया है वो वेरीफाई हो रहा है. तो यस, इट इज वेरीफाइंग एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, मतलब समझ आया आपको. जैसे यहाँ हमें ये जो 2 by x plus 3 है, अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ तो दोनों की वैल्यूज सेम आएगी. ठीक है, एंड हेंस वी कैन से दैट D इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑल राइट, तो हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इफ y इक्वल्स टू log e log x base is pi, then d square y by dx square equals to dash where x is greater than 1. ठीक है, now here we all have to note it down कि pi है हमारा बेस. ठीक है, तो उसे चेंज करना पड़ेगा तभी हम सब लगा पाएंगे डिफरेंशिएशन वगैरह. ऑल राइट, तो y इक्वल्स टू log e log x base pi, then d square y by dx square is equals to dash log e x. अब ये जो चीज है क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? Yes, of course. एंड बाद में हमने log की फॉर्मूलाज अप्लाई कर ली, तो log e x माइनस log e log pi base e. ठीक है, नाउ डेरिवेटिंग इट, डेरिवेट करने के बाद हमें मिल गया 1 अपॉन x log x base e. y डबल डैश फाइंड करना है. ठीक है, सो y d स्क्वायर y by dx स्क्वायर जो हमें फाइंड करना है, तो y डबल डैश इक्वल्स टू 0. मीन्स हमने क्या किया, हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दी f of x अपॉन g of x वाली. ठीक है, फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास ये आ जाएगा. नाउ कैन वी राइट दिस 1 इक्वल्स टू log e बेस e. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, राइट. सो वी कैन राइट लाइक दिस. हमने इसे ऐसे लिख दिया एंड वी गॉट आवर आंसर, राइट. इट वॉज क्वाइट इजियर. सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन था और हमें पता होना चाहिए कि log x पाई बेस पाई है तो उसे हम कैसे मॉडिफाई करें. So C is the correct answer for this question. Hope you all like this video. Do subscribe and share this video with your friends and colleagues.